actually very dear to Nityananda Prabhu. So, some pastimes are there in their house, many pastimes. Especially in the beginning of his Lila, Gaurasudha wanted to show the world the importance of Ekadasi. So, when Nimai was very small, normally when Nimai would cry, then the ladies would chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Nimai would smile, dance, and become happy. So whenever the kirtan stopped, he would cry. He was always surrounded by Haribol and Sankirtan. So ladies also called him Gaura Hari, because always there was chanting of the Haribol. But one day, no matter how much the ladies chanted, Nimai would not stop crying. Then finally his father, Jagannath Mishra, "Oh my child, just tell me what you want, anything I will give you. Do not cry. Your crying breaks our hearts." So inexplicably, Nimai said, "Oh Father, I want the Ekadasi offerings of Hiranya and Jagadish." This is a very impossible request. So Jagannath Mishra went to his friends, who they were Vaishnavas, of course, and worshipping Lakshmi Narayana. So on Ekadasi we may fast, but Bhagavan does not have to fast. This is Bhagavan. So, indeed, Srila Maharaj explained, this body is made of water, 80% water. So the day of Ekadasi, just like the tides are influenced by the moon, so the day of Ekadasi, the waters in the body are also attracted towards the moon. That means the enjoyment spirit increases very much on those days. Very much. One policeman I spoke to in England, he said, so much crime, full moon and new moon. So much. Because the moon also influences the mind, and therefore people become crazy and lusty. So inexplicably, Krishna's desire to enjoy also increases on Ekadasi. Of course, Krishna has no material body, but still. Therefore, to increase Krishna's enjoyment on Ekadasi, the Vaishnavas give up their own enjoyment. And in Kali Yuga, main enjoyment is eating. Life is food grains in Kali Yuga. So Hiranya, Jagannath Mishra went to the two brothers. They were very happy to see him. And in Vaishnava culture, when a guest comes, you say to him, how can I serve you? How can I please you? Then Jagadish was very ashamed. Jagannath Mishra was very ashamed. I have an impossible request. My son is requesting your special Ekadasi preparations. Then Jagadish and Hiranya were astonished. How this child knows we are doing some special cooking for Ekadasi. And then the Super Soul gave them, oh, this Nimai Pandit must be Bhagavan. Otherwise, how could he request that? They satisfied the Lord from the beginning to establish the glories of Ekadasi. And Nityananda would, when he came, especially when he began his preaching, he would mostly stay at the houses of these two Brahmanas, Jagadish and Hiranyaka. So especially Nityananda Prabhu was sannyasi, but very astonishing sannyasi. So he would walk around with different colored cloth. Sadaguna netram, karakalitam vektram kalibidam, bhajanityananda bhajanataru kandam. Nityananda would wear many different types of cloth, silk. He would, in his stick, in his hand he would carry an iron stick, an iron rod, which he would pierce the influence of Kali. He was covered with so many ornaments, so many jewels, diamonds, rings, ankle bells, anklets. So much wealth he was carrying. Huh? Earring, one earring. Single.
But so much opulence, because Nityananda is Bhagavan. And there in Sringarvat, one of the Goswamis, he says, original necklace of Nityananda. Anyway, who knows, but you can see full of many, many jewels. Have you seen it? If you give them enough dimensions or so. So there's many, I don't know what stones, but you can imagine Nityananda as well. So Nityananda would move around Navadvip doing Sankirtanas with these two brothers and all the Vaishnavas, Garadha, Srivas, Murari, Purandaracharya, Surabhamada afterwards. So Advaita. So they would move around doing Sankirtan everywhere. Then some criminals also noticed Nityananda has so much wealth, so many jewels and gold. So they, one especially who was the leader of the criminals, who was a Brahmin, but no one can count how many people he had killed, how much wealth he had stolen. So being very desirous of plundering the wealth of Nityananda, he also joined the Sankirtan. Haribol, Haribol. Many times like that, people desirous of some material benefit, they see the opulence of the temple, well, he was a good opportunity. So he joined the Sankirtan, and where Nityananda sleeps, what time he sleeps, what they do, he noticed them. Then he went back to his band of criminals, yes. And they all became attracted. They began arguing, I will take the earring, I will take the pearl necklace, I will take the rings, I will take the gold, I will take the gold necklaces. All began arguing, I will have this, I will have this. Then someone said, yes, this Goswami, he moves here and there. Then someone said, how can you call him a Goswami? Look what he's wearing. Goswami means who controls mind and senses. Anyway. So, the criminals, they made a plan, nighttime, they covered themselves in black, sharpened their weapons, and they approached the house of Jagadish Nanda. But what happened? As they were waiting for the good time to attack, Yogamaya came and all slept. Deep sleep. Morning came, 8, 9, still sleeping. Then when they woke up, they saw what happened. The whole night passed. We could not steal anything. They began abusing each other. You were the first to sleep. Oh yes, and you were nicely awake, I see. Some argument was there. Then the leader criminal said, we did not worship properly Durga. Durga, the goddess of war. Therefore we have many obstacles. We'll do again. So the next night again they prepared everything. They worshipped Durga, maybe a few chickens were sacrificed. Nighttime when they approached the house, they saw one criminal went before to see what's happening. Normally Nityananda would stay in the house of the brothers chanting Sankirtan till late. But what did this guard saw? This criminal saw? Many, many guards. Each guard was like 8 foot tall. With garland of lotuses around their neck, huge bodies, so many weapons. Each guard could kill 15 or 20 criminals. And so many guards were walking around the house chanting Haribol, Haribol, Haribol. So the scout, Spionsky, he returned. I don't know what happened. Many guards are there, many soldiers. They are huge, like mountains, like elephants. So many weapons. And they are all chanting Harinam. How is it possible? Where they came from? Actually, they came from Vaikuntha. Then the criminals began talking, well, many people visit this Avadut. Many people. So one king has obviously come, and this king is a religious fanatic. His guards are chanting Haribol, Haribol.
Then the criminal said, no, okay, 2-3 nights we'll wait, then again we'll do it. So when they attacked again, then all the demigods became angry. Who is this fellow to cause pain in Nityananda? Therefore, heavy storm came, so much rain, wind, hail. You know hail, Prema? Stones. Millions of insects were there, mosquitoes, leeches, scorpions. It was so dark they could not see. Some fell into thorns, some fell into a hole, some just moved in circles. It was so cold, they wanted to die but could not die, because the demigods wanted to torture them extra. Some broke their hands, some broke their legs. So the leader of some fell into thorns. So the leader of the criminals was thinking, what happened? First night we slept. Second night we saw the guards. And now look at us. From nowhere this storm came. What they say about Nityananda must be true. Some say he is Bhagavan. So I have done great offense. Just like when one falls on the ground, how he gets off the ground? By the same ground he pushes, takes shelter of the ground to lift himself. I've done offense against Nityananda there, only for by taking shelter of Nityananda I become free from apparatus. So he began meditating on the lotus feet of Nitai, and by the power of that meditation all his sins were destroyed. Morning came and somehow the criminals went home. And the leader of the criminals, he was a changed man. Weeping, he fell at the feet of Nityananda in the house of Jagadish and Hirananda. I have decided, I tried to harm your body, therefore let me give up this body. Next life I may serve you. And as that criminal did pranam to Nityananda, all the symptoms of ecstasy manifest on his body, like shedding of tears and hair standing on it. Someone said, don't trust him, he's a thief, a murderer. Others said, no, by the mercy of Nityananda everything is possible. So he transformed into a devotee. Nityananda said, what you did before, don't do again, all your sins will be forgiven. So he would go to other criminals and also preach to them. In this way he spread dharma everywhere. So anyway, this pastime of Nityananda also happened in the house of Jagadish. So he's nothing else but Parshad of Bhagavan. So what can we do? Today is also the disappearance of the Jiva Goswami Pad. He's Vilas Manjari, no? Yes. Vilas Manjari in Radha Krishna's Lila. So what can we say? He was the Rup Sanatan, one of his uncles, and his father was Anupa. Actually, his family came originally from Kerala. They were like Brahmanas. Then they came to Bengal. Anupam was a devotee of Lord Ram. But by always the Rup Sanatan are devotees of Radha Krishna. Therefore Rup Sanatan would joke with Anupam, you should also worship Radha Krishna. Krishna has 64 qualities. So attractive, Swayam Bhagavan, Adi Purush. And hearing about the sweetness of Krishna, then Anupam's mind changed. Yes, I will also worship Radha Krishna with my brothers. But when he thought of giving up the feet of Ram, then he began to weep. And he said to the two brides, we cannot give up. I cannot disregard you, but I cannot give up the seva of Ram. So I want to give up my life. Rup Sanatan were very happy seeing his nistha towards Ram Chandra. Therefore, this is one proof the Surup of the Jiva had not changed. Rup Sanatan could not change it. So, anyway, so son of great father, when his father attained the Ganga, he's left this world. Picture? Anyone have a picture of Jiva Goswami? Before was, no? We did. Yes.
I have anyone. Then Jiva Goswami so much came with the Sangha Rupa and Sanatana. As a child, he saw Gaura Hari when he was a baby. He appeared quite late, but still he had darshan of Mahaprabhu. And from young age, Sakti stove. Mahaprabhu stove. no, that was another one, that was Kavikam. So, especially in Navadvip, he got this Sangha of Nityananda Guru. And Nityananda took him on this first Navadvip Mandal Parikram. Bhaktivinoda Thakur, his Samadhi had seen this event and he recorded in this book, Navadvip Dal Mahatmya. They described to Jiva Goswami the glories of Navadvipa. Then Nityananda said that you should go to Vrindavan. That Vrindavan has been given to your family. Nitai said, Mahaprabhu has given Vrindavan to your family. Then Jiva Goswami asked, but if Vrindavan and Navadvip are the same, why should I leave Navadvip and go to Vrindavan? Then Nityananda answered very sweetly. First reason is Mahaprabhu has ordered. And second reason is very confidential, Samavala. The conditioned souls cannot worship Radha Krishna. They are full of anarthas and offense. Therefore Radha Krishna have come in the form of Gaura Hari. By worshipping Gaura Hari, one becomes free from aparadha and offense. One achieves qualification for bhakti rasa. Gaura prema rasa name jetaranga jevaduvi sirada madhavanta. One who becomes attached to Gaura Hari becomes an eternal servant of Radha Krishna. So by serving Gauranga, by hearing Gauranga's name, Sri Gauranga Namaloi Tar Hoi Premudara, Vidya Numela Bala. By hearing Gaur Tattva, Gaur Gun, Gaur Kam, Gaur Nam, heart becomes purified. And with purified heart, one becomes qualified for bhakti. That time Mahaprabhu reveals himself as Radha Krishna. So Vrindavan manifests as Navadvip for the unqualified persons like us in Kali Yuga. But the qualified souls are then eligible for direct contact and seva of Radha Krishna. So in Navadvip it's available indirectly, but Braj is direct. So Nityananda told all these confidential things to Jiva Goswami. Go to Braj. So as Nityananda, Jiva Goswami weeping headed towards Vrindavan, then Rup Sanatana awoke in his heart. On the way he came to Varanasi, there he studied especially Sanskrit grammar and the Shastras with one Madhusudan Goswami. So, what was his form? One Madhusudan Goswami, who was a Mayavadi, but very learned. Is Madhusudan Saraswati. Madhusudan Not Saraswati. teaching to grammar, he Vedanta Sutra no, because he is disciple of Sarvam Bhattacharya. And he know this, what Mahaprabhu teach to Sarvam Bhattacharya, this all lesson give to Madhusudan Saraswati, this Jiva Goswami like vegetarian. Yes, so he also there studying Shastras, and by the association of Jiva Goswami and Madhusudan Saraswati also became Vaishnava. Thereafter, of course, Jiva Goswami no need to complete his studies, but still that pastime is done. Then he came to Vrindavan, and there he stayed in Radha Damodar. And there is the Samadhi of Jiva Goswami. And then he was like the shadow of Rupa Goswami. Especially Rupa Goswami would compile many Siddhanta, then Jiva Goswami would himself write and also edit, assist Rupa Goswami in his writings. So many years he stayed after the disappearance of Rupa and Sanatana, then Jiva Goswami became like Vaishnava Sarvabhauma. Even great Vaishnavas like Srinivasacharya, Narottam, Shamananda Prabhu,
took shelter of Jiva Goswami. Guru Maharaj saying what the Goswamis wrote, this is like pure nectar, and many things the Goswami is writing, not directly written in Shastra, it's there but who will see. Like even Uddhav, he said, Shruti vil Vijrameva. Even the Vedas searching for this prem of the gopis. But how much successful they are in finding, that's another. So even the personified Vedas searching for the mood of Rupa and Sanatana. So Guru Maharaj says that's why Jiva Goswami is so important. Because of course Rupa Sanatana can never write anything against Shastra, but they don't spend too much time giving praman for it. But what they're writing is beyond all this. So Jiva Goswami, he like gave foundation, like protection to the works of the Goswamis. Guru Maharaj says like pure water in a pipe. The pipe is there to make sure the water is not lost and to make sure also some contamination not come inside. So Jiva Goswami is especially his Sandarbhas. Now, if you read this Bhagavad Sandarbha, how deeply it goes into all this. The Srimad Bhagavatam glories. Paramatma Sandarbha, there's all Jiv Tattva. And the position of Krishna compared to Vishnu. The Priti Sandarbha, there's also the explanation of Krishna Prema as the goal of life. So this Bhagavad Sandarbha, how much Praman Krishna is Swayam Bhagavan. The Seva of Vishnu is the top. And if you really become astonished. So especially Sandarbhas, this is like a channel, like a pipe, to protect the writings, establish the writings of Rupa and Sanatana, and make sure no contamination comes inside. Therefore he was vast Pandita. I heard Jiva Goswami wrote more than 400,000 verses. But not just Siddhantic, if you read his Gopal Champu, then you understand also how very Rasik he was. So very Siddhantic, Tattvavid, and also very Siddhantic. Also, what the Guru Goswamis gave, then Jiva Goswami carried that and gave to the next generation, especially the three acharyas, Narottam, Srinivas, and Shamananda, who accepted Jiva Goswami as Shiksha Guru. We are not very learned, therefore it's very difficult for us to understand the scholarship of Jiva Goswami. But still, even a little bit, we know you read these Sandarbhas and other, then become very much astonished. So many other books he wrote. So we give pranam to Jiva Goswami. He's too much important amongst the 6 Goswamis. He's the life and soul of Gaudiya Vaishnavas. So what can we say? Sri Jiva Goswami Pad Ki Jai. Vande Gurum Padadvandam Bhaktavinda Samanavitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samajuktam Vrindavana Sri Damodara Vigraha Prakatita Sri Radhaya Sobhita Sri Rupena Kripabhina Suruchaya Sevartham Asmai Dado Syamananda Narotamadi Sujana Sastrartha Vijnana Vyadhat Bhaktaya Visvahitaya Tam Bhaja Gurum Sri Jiva Goswaminam Hastat Manak Tattvam Srimad Bhagavatasya Jat Darsayamasa Jivebhyo Tam Jiva Prabhum Bhaje Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति जीवन जनार्दन सिंह महाराज नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत प्रणाम। आज पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि श्रीला जी गोस्वामीपाद जी की तिरुभाव तिथि। जीवस्य जीवन, जैसे आत्मा चेतन स्वरूप है, उसमें चेतना है, जीवन है, और जीव वो चेतना नित्य है, इसलिए शरीर चल रहा है। अगर इससे जीव को बाहर कर दिया जाए, चेतना को बाहर कर दिया जाए तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीव भक्त जनस्य जीवन, जीव गोसाईपाद जी भक्तों के जीवन है। उनके लिए कहा गया रूप सनातन गोस्वामी यदि भक्ति रस है, भक्ति समुद्र है, तो जीव गोस्वामी उनकी गहराई है। कोई उनको नाप नहीं सकता समुद्र कितना गहरा है। श्री जीव गोस्वामी जी श्री रूप सनातन और अनुपम, इन तीन भाइयों में जो सबसे छोटे थे अनुपम थे, उनके सुपुत्र और इनके दो ताऊ जी हुए श्री रूप और सनातन। जिससे चैतन्य महाप्रभु जी इन पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं राम के लिए ग्राम पधारे। दोनों भाई रूप सनातन, तब उनका नाम था दलील खास साकर मलिक, क्योंकि हुसैन साहब यहाँ पर नौकरी करते थे। उनके मंत्री पद पर, प्रधानमंत्री पद और सचिव पद पर प्रतिष्ठित थे। तो उनसे जब मिलने के लिए दोनों भाई जो महाप्रभु जहाँ कीर्तन करके विराज रहे उस स्थान पर आए, बहुत विनय किए, प्रार्थना करके प्रणाम किए, हम बड़े पापी हैं, बड़े अपराधी हैं। इसका परिणाम है, प्रमाण है कि हम नीच जनों की सेवा करते हैं, नीच लोगों के साथ में रहते हैं, जो धर्म विरोधी हैं, गौ हत्या करते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ रही। तो हमारे जैसे व्यक्ति आपसे क्या कहें, मैं कुछ कहूँ मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो क्षमा को भी लज्जा को भी लज जाएगी। उसे महाप्रभु दोनों को जबरदस्ती उठा कर गले से लगाए। उसमें रूप गोस्वामी के मुंह से इस शब्द निकला, केवल हृदय से लगाए नहीं बल्कि हृदय के सारे भाव में संक्रमण कर दिए। वृंदावनी वरस केली वार्ता काले तमने शक्ति मुक्त का संचार जरूर है। और जब उस प्रेम का संचार हुआ तो उनके मुंह से निकल पड़ा नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर किसे। आप कृष्ण हैं लेकिन कृष्ण से भी अधिक है, कृष्ण चैतन्य। आप उस कृष्ण को चेतना दे, उस प्रेम को हृदय में प्रकाशित कर दे रहे, जीवित कर दे रहे। जो जीव उस प्रेम को, उस भाव को, सेवा को भूल गया है, उसको पुनः स्मरण करा दे रहे, जीवित कर दे। हम महादयालु है, महाबादल, आपको प्रणाम। उस समय महाप्रभु जी दोनों को सांत्वना दिए कि आप लोग इतना दैन्य मत करो,
और अपना नाम भूल जब तुम साकर मलिक और डबल खास और अमर संतोष नहीं हो। पहले इनका नाम था अमर संतोष, बाद में जब राजकार्य में आए तो इनका नाम बादशाह के द्वारा निर्धारित हुआ साकर मलिक डबल खास। और बाद में महाप्रभु जी से मिले तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम दोनों का रूप सनातन, और तुम दोनों हमारे पुरातन दास हो, नित्य दास हो, नित्य संगी हो। तुम लोग निश्चित मेरे परिकर हो। गौरांग मेरे संगी ने नित्य सिद्ध करी माने तार है प्रजत में बस। अगर तुम दोनों इतना दैन्य करोगे तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उस समय जीव गोस्वामी जी छोटे बालक के रूप में 5 वर्षीय बालक, उन्होंने महाप्रभु जी को देखा। अब 5 साल के बालक में भी कुछ संस्मरण अनुभूति होती है, और अगर वो बालक विलक्षण हो तो फिर क्या करना। तो महाप्रभु जी के चरण से लेकर शीश पर्यंत सौंदर्य को निहार रहे जीव गोस्वामी। बालक को इतना सुंदर पुरुष कौन है जिसके लिए प्रबोधन पाजी कहते सौंदर्य काम कोटि सकल जन समाराधने चंद्र कोटि वात्सल्य कोटि त्रिदश विटपी नाम कोटि अवतार सार गांभीर्य मुदि कोटि सुधा चिरमाधवी तक कोटि गौरव देव सजिया प्रणय रस पढ़े दर्शित आसित कोटि। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, सारे विश्व को आराधित करने के लिए करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीतल, वात्सल्य करोड़ों वात्सल्य की मूर्ति, गांभीर्य में करोड़ों समुद्र के समान, अमृत में करोड़ों समुद्र के समान, सारे आश्चर्य को दिखाने वाले महापुरुष की जय हो जय हो। उस समय जीव गोस्वामी को उनके चरणों में लौटा दिया गया, चरण को पकड़ लिया कर्णपुर की तरह, क्योंकि महाप्रभु के 2 लोग चरण चूसे। एक तो कवि कर्णपुर है जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू, और जीव गोस्वामी ने चूसा था गोपाल चंपू। और कितने चंपू, कितने चमत्कार। चंपू मतलब चमत्कार, बहुत चमत्कार प्रकट किया। कृपा करके महाप्रभु जी चले आए। उसके तुरंत बाद रूप सनातन, पहले रूप बाद में सनातन और रूप जी के साथ अनुपम, ये तीनों भाई निकल पड़े। महाप्रभु जी की पुनः कृपा हुई प्रयागराज में और वाराणसी में दोनों भाइयों के प्रति, और इस प्रकार अनुपम के साथ वृंदावन चले आए। कुछ समय यहाँ रहने के बाद पुनः नीलाचल को जाते समय अनुपम की गंगा प्राप्ति हो जाती है। तब जीव गोस्वामी कुछ बड़े हो चुके हैं, 16-17 साल की, और एक खबर उन्हें प्राप्त होता। ये अकेले अपने पिता के स्थान पर फतेहाबाद, उसको नाम के लिए अंतर्गत एक जगह का नाम फतेहाबाद, निवास कर रहे। पूरे परिवार, पिता, ताऊ घर से निकल चुके हैं, अकेले बालक। इनकी माता, क्योंकि रूप सनातन तो विवाह आदि किए नहीं, तो ऐसे कुमार निकल गए। अनुपम का पुत्र जीव अपने माता के गोद में पलते पलते 16-17 साल हो, और सुना कि पिताजी की गंगा प्राप्ति हुई तो बहुत विलाप करने लगे, बहुत दुखी हो गया और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करें, मन इतना अशांत हो गया, कहाँ जाए, कैसे शांति मिलेगी। तो लोग बोले कि आप नवद्वीप जाइए, महाप्रभु जी के परिकरों से मिलिए, वो लोग संत बना देंगे। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद जी को स्मरण करके नवद्वीप के लिए चल पड़े। और जैसे नवद्वीप में पहुंचे, नित्यानंद जी खड़गा में थे, उधर प्रचार कर रहे। वो अंतर्जामी है, जीव आ रहा है, अपना प्रचार कार्य को स्थगित करके नवद्वीप चले। जीव गोस्वामी जी मायापुर को पहले प्रणाम करते, अंतर्द्वीप को, आत्मनिवेदनात्मक जो अंतर्द्वीप है नवदा भक्ति का, वहां पर अपना आत्मनिवेदन करते हैं। और जैसे प्रणाम करके उठे तो नित्यानंद जी सामने खड़े। प्रणाम तो धाम को कर रहे थे, लेकिन
उठे तो निताई प्रभु के चरण, क्योंकि धाम स्वरूप है, मुस्कुरा रहे हैं और जीव को गले से लगा है। पूछे तुम रूप सनातन के भ्रातस पुत्र हो? ये सुन के जीव को उसने फिर दंडवत प्रणाम की। ये कौन है जो मेरे पिता ताऊ के बारे में पूछते हैं, कैसे जानते हैं? उन्होंने बोला मैं निताई हूँ, और रोने लगे। आर का निताई चांद का गुना है, जो संसार वासना मोह कवे तुच्छा, जो नरोत्तम दादी का पद है। उन्होंने उनको गले लगाए और हाथ पकड़ करके सबसे पहले सची माता के आंगन में आए, जिसको बोलते हैं अंतर्दिक जोग पीठ। उस समय उनके सेवक ईशान ठाकुर, सची माता के अवस्था 90-95 साल की हो चुकी है, केस सफेद हो गए, हाथ थोड़ा कांपता भी है, लेकिन निताई को देख कर एकदम से आनंदित हो गए और ईशान बोले श्रीपाद पधारे, नित्यानंद पधारे, के चरण धो, आसन दो। सेवक ने चरण धोए, आसन दिए, और सची माता उस अवस्था में भी सुंदर सुंदर भोजन बना और ठाकुर जी को भोग लगा। भोग लगाने के बाद में निताई को दिए और बोले कि तुम पाओ, अभी अभी गौरांग इसको पाया, निमाई अभी प्रसाद को भोजन किया, इसको भोग लगाया, मैंने अपने आंखों से देखा। क्योंकि जब भी मैया भोग लगाती प्रेम से पुकारती है तो निताई चैतन्य महाप्रभु निमाई वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से प्रसाद पाते जैसे उनके रहते समय पाते। नित्यानंद प्रभु जी भाव में भर करके प्रसाद पाए और प्रसाद जीव को दिए। जीव का संस्कार तो बचपन से पड़ा था, महाप्रभु जी कृपा हुई। बाल काल में जब खेल खेलते थे तो कृष्ण लीला का अतिरिक्त कुछ खेला ही नहीं करते, मिट्टी से राम कृष्ण बना कर खेलते थे, उनकी पूजा करते थे और उसी भाव में डूबे रहते थे। आज उन स्थान पर साक्षात चले जहां पर निताई निमाई दोनों लीला किए, जिनका चिंतन करते तो लीला साक्षात उनको दिखाई पड़ने लगे। प्रसाद पाने के बाद में और अनुभूति प्रबल हो गई। ब्रजन नंदन जय सची सुत है लो सही बलराम है लो निताई, और दृढ़ कर निताई लो पाए। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पाद, दृढ़ कर धर निताई से संबंध नानी जान, जार वृथा जन्म कलो तार से पशु बड़ा ब्रज। जीव गोसाई प्रसाद को पुनः नित्यानंद के चरण पकड़े और बोले प्रभु आप कृपा करिए, मुझे सब स्फूर्ति कराइए, संपूर्ण नवदीप नवमंडल की परिक्रमा कराए, नवखंड की, और सारे तत्व सिद्धांत उनके हृदय में स्फूर्ति कराए। ये धाम परम शुद्ध है, विशुद्ध सत्व है। यहाँ पर रजोगुणी तमोगुणी ज्ञानी जोगी कर्मी का प्रवेश नहीं है। जो विशुद्ध भक्त हैं, और भक्तों में केवल शुद्ध भाव वाले, शुद्ध प्रेम वाले, दास तक वात्सल मधुर भाव वाले जो भक्त हैं, वही धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ये सब भागवत में सिद्धांत है जी। तुम बाद में इसका अनुसरण करोगे, इस पर विचार करोगे, जब विचार करने जाओगे तो और तत्व स्फूर्ति हो जाए। सर्व वेदांत सारम तद ब्रह्म आत्मैकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य का प्रोजन। भागवत सारे वेदांतों का, सारे शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार है। इसमें ब्रह्म परम तत्व जो केवल अनुभवानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसकी प्रकाष्ठा परमात्मा, और उसका भी आश्रय भगवान, और उसका भी आश्रय कृष्ण, उसका वर्णन हुआ है। भागवत में शुद्ध रूप से कृष्ण तत्व का वर्णन है। एक चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम बढ़ियंती जुगे जुगे। जो ज्ञान विशुद्ध स्वरूप है, जो अंतर में परमात्मा रूप से और बाहर में साक्षात भगवान के रूप से अंतर बहिर् प्रत्यक्ष प्रसन्नता भगवत शब्द समूह, जिसको लोग भगवान और स्वयं भगवान कहते हैं।
उसकी उपलब्धि केवल साधु संग में शुद्ध भाव का अनुशीलन करने से होता है। वही जीव का प्रयोजन है, कैवल्य का प्रयोजन। उस ब्रह्म के प्रति निष्ठा रखो। उनकी जो आत्मा है वो भक्त है, विशेष करके राधा रानी, उनके अनुगत उनका जो भजन करते हैं वो शुद्ध भाव को प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, ब्रज भक्ति, लौकिक सदबंधु भक्ति। तुम्हें कौन बड़ लोग तुम्हें आमिष्टम, केवला रे विशुद्ध प्रेम, ऐश्वर्य नहीं जाने, ऐश्वर्य देखे उसे निसंबंध करें। उनको केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, अन्याभिलाषिता, शून्य भक्ति, अकिंचना निष्किंचना भक्ति की प्राप्ति होती, वर्जिता भक्ति जिसको कहते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी सारे तत्व शुद्ध रूप में उनके हृदय में दिए। धाम को प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए, रोते रोते वृंदावन के लिए चल पड़े। गौड़ा ब्रज जने, दोनों एक ही हैं। गौड़ा ब्रज जने भेद न देखी, वो है वो ब्रजवास। धाम मेरे स्वरूप स्फुर में नयन है वो राधा है। जो ब्रज में है वो गौड़ का चिंतन करते, जो गौड़ है वो ब्रज का चिंतन करते। सेवा है, क्योंकि महाप्रभु जी ने रूप सनातन को ब्रज का आदिपात्र प्रदान किया और उनके उत्तराधिकारी है। जिनको स्वामी जी का ब्रज में बहुत काट था, जो रूप सनातन के बाद उस अधिकार को, उस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। और निताई प्रभु त्रिकालदर्शी है, तो बोले तुम वहीं जाओ, तुम्हारे पूर्वजों के लिए वही स्थान मिला है, वहीं जाके भजन करो और उनका प्रचार करो। वहां से चलते चलते काशी में आए और श्री मधुसूदन सरस्वती जी से मिले। कई तरह के पक्ष कोई बोलते हैं जब गोस्वामी जी वहां पर जाकर सीखे नहीं, केवल एक दृढ़ता कि इनका जो विचार है, इनका जो सिद्धांत, इनका जो पक्ष क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है, सुनना जरूरी है। आपका क्या भाव है उसको जानना एक बात है और सीखना अलग बात है। तो उनके पास गए थोड़ा भावों को सुनने के लिए, समझने के लिए कि क्या बोलते हैं। इनका सिद्धांत अपना पक्का है, लेकिन हम दूसरे को विचार को जानेंगे ना, उस पर कोई बात उठाएंगे तो उस पक्ष का भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और दूसरे के पक्ष को जानने का सबसे अच्छा उपाय होता है उसी से जाना, जिसका जो पक्ष है वो अपना पक्ष अच्छा से कहेगा और प्रमाण होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं और पहले इनका अपना पक्ष था, ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, शेष है, सत्ता मात्र है, आनंद मात्र है, इत्यादि इत्यादि। उसकी कोई शक्ति नहीं, निशक्ति है, निराकार है। लेकिन महाप्रभु जी सिद्धांत दिए बोले नहीं, ब्रह्म शक्ति संपन्न है, उनके बहुत गुण है, लीला है, शक्ति है। पराशर शक्ति विविध है वह सूर्यते, स्वाभाविक ज्ञान बना क्रिया चल। ये सब जब बात सुने तो भट्टाचार्य उसको खंडन नहीं कर पाए। कैसे कर सकते इसको शक्ति नहीं, जब उपनिषद कह रहे, उपनिषद को मानते हैं तो देखो पराशर शक्ति विविध है सूर्यते न तत्समा न चाप्यधिकस्य श्रुत्य। उनके समान कोई नहीं है, उनसे अधिक कोई नहीं, और उनकी बहुत सारी शक्तियां स्वाभाविक है। तो शक्ति से युक्त होता है तो भगवान लीलाओं को प्रकाश करते, विहार करते। ये सुनने के बाद उनकी जो सिद्धांत में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को भी उनको सुनाया अपने शिष्यों को। ये सब जीव को संग वहां पर वेदांत का जो तात्पर्य श्रीमद् भागवत है, महाप्रभु जी ने वेदांत सूत्र की जो व्याख्या किया है वो भागवत पर अर्थयन ब्रह्म सूत्रा नाम, जो गरुड़ पुराण के वचन है, ब्रह्म सूत्र का ये अर्थ है वेदांत सूत्र का भागवत।
तो उसी के आधार पर वो व्याख्या की और वो व्याख्यान स्वामी भट्टाचार्य सुने और बाद में मधुसूदन सरस्वती पाद को सुनाया। और जिन गोस्वामी जो वहां पर गए थे उस चीज को मत चिता मत प्राण होकर के बोध है उनका परस्परम चीज को बोध किए। बाद में सरस्वती पाद का भी जो मनोभाव था पहले से हट गया और उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी और एक भक्ति रसायन ग्रंथ की रचना की और वहां पर कृष्ण को परम तत्व के रूप में प्रणाम किया। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये भी जीव गोस्वामी के संग के बाद में कृष्ण ही परम तत्व चरम रूप में अनुभव किए और बाद में उनके देखने से चले। जीव गोस्वामी जी ब्रज में आए और रूप ने उनको देखा, श्री रूप गोस्वामी पाद उनके चरणों में लौट पड़े, उन्होंने बस सिर पर हाथ रखा, सब बातें सुनी और अपने साथ उनको रख लिया, मंत्र प्रदान किए और जीव गोस्वामी अपने दोनों गुरुओं की सेवा करने लगे, रूप गोस्वामी जी की और सनातन गोस्वामी जी की। उनके लिए जमुना से जल भर लाते हैं, बैठने का स्थान को स्वच्छ करते हैं, आसन बिछा देते हैं, कभी कभी सिर में तेल मर्दन करते, कभी हाथ पैर दबाते हैं, छोटा बालक भतीजा बहुत प्रकार से सेवा करते जब जैसा जरूर। और रूप गोस्वामी जी बहुत थोड़े समय में उनको सब कुछ हृदय में दे। व्याकरण आदि तो पहले घर में अनुशीलन किए थे, उन्होंने व्याकरण पर टीका लिखी। पहले जो व्याकरण थे और जो लोग पढ़ते हैं वो अलग है। जीव गोस्वामी जी ने जो रचना को विचित्र है, पाणिनि, कलाप, चांद्र, ऐन्द्र, ऐसे कई व्याकरण प्रसिद्ध है, सारस्वत। लेकिन उनमें जितने भी भगवान के नाम है, संज्ञा है, नॉन जिसको कहते हैं, वो सब फालतू है। जैसे किसी को नाम रख दो पप्पू, गुड्डू, मोनू, तो कैसा लगता है? अगर वैष्णव लोग ये सब सुनेंगे तो सुनकर उनको आघात लगता है। जीव गोस्वामी कहते हैं आहत जटितम विश्व। इन व्याकरणों में जो शब्दों का जो प्रयोग है, संज्ञा को आहत है, वैष्णव का आघात देने वाला और जल्पना किया गया है, इमेजिनेशन। जैसे सर्वेश्वर, सर्वेश्वर को स्वर को जीव गोस्वामी सर्वेश्वर कहा। अब जो हमारे जो अल्फाबेट है, अक्षर, वो दो भाग में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वर को अलग अलग व्याकरण वालों ने अलग अलग नाम दिए। कुछ लोग इसको अच बोलते हैं। अब अच कोई इसका अर्थ नहीं निकलता। जब खटपट बोलो तो कोई माने नहीं निकलता है। खटपट दिमाग में खटखट लगता है। तो सर्वेश्वर को पाणिनि वाले ने अच बोला, अच। और विष्णु जन जो है, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं, उसको हल बोलते। अब अच्छा जीव गोस्वामी नहीं, जो अच है, जो स्वर है, उसका नाम सर्वेश्वर होना चाहिए, क्योंकि स्वर जो होता है सर्वेश्वर है। कोई भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर का नहीं होता। का बोलेंगे तो आ उसमें रहेगा। जो 12 स्वर है, आ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, कोई भी मात्रा उच्चारण करेंगे, कोई भी व्यंजन का खा गा उसका सब उसका प्रयोग होता है। तो जैसे बिना स्वर, बिना सर्वेश्वर, बिना भगवान व्यंजन की करती है। व्यंजन को उन्होंने विष्णु जन कहा, जीव है विष्णु जन, भगवान के दास। और ये जीव जो कुछ भी कर रहे, भगवान की कृपा से कर रहे हैं।
वो ध्रुव गोस्वामी जी का उदाहरण देते हैं, ध्रुव जी स्तुति में कहा है, जो हमारे हृदय में आत्मा रूप से सबको चला रहे हैं, वो आत्मा रूप से इसलिए वाणी बोल रहा है, आंखें देखती है, पैर चलता है, सब कार्य हो रहा है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। इसलिए विष्णु जन को उन्होंने व्यंजन को विष्णु जन का, पानी वाले उसको हल बोलते हैं, तो बोला कि जल्दी है और जटिल भी है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। व्यंजन विष्णु जन बोलने से उसका माने होता है, सर्वेश्वर बोलने से माने होता है। और जो कवर चवर गादी बोलते हैं उसको कुचु टुचु टू करके नाम दिया। और इन्होंने हरि कमल, हरि खड़ग, हरि गदा, हरि घोष, एक पंच मंता, पंच विष्णु वर्गा, विष्णु वर्ग, ऐसे नाम दिए। और वो लोग हरि कमल, हरि खड़ग, हरि गदा, हरि घोष को बोलते हैं चयश्च, छपश्च, दशश्च, धसश्च, उमश्च, ऐसा नाम दिए, कोई माने नहीं है। बोले शब्दों का जो शासन है, शब्दों का जो प्रयोग है, वो बड़ा विचित्र है। ये सब देख करके मैंने वैष्णवों के लिए अलग व्याकरण की रचना की। आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा शब्दानुशासनस्तम हरे नामामृत बलि व्याकरण वैष्णवार्थमाचिन। हरिनामामृत नामक इस व्याकरण को मैं संग्रह कर रहा। पहले सनातन गोस्वामी ने सूत्रों को संग्रह किए हैं, महाप्रभु जी सब बातें अपनी पढ़ाई में बोले हैं, चैतन्य भागवत को सब देखेंगे। उन सब विचारों को लेकर के पुराणों के तात्पर्य से एक ऐसा अद्भुत व्याकरण की रचना की। और उन्होंने लिखा, एक व्याकरण है, ये केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, इसके पढ़ने के साथ साथ भजन होता है। जैसे कोई भागवत पढ़ता है, सुनता है, चिंतन करता है, तो केवल ज्ञान नहीं अर्जित करता, ज्ञान तो स्वाभाविक होगा, वो भक्ति करता है। और भक्ति जहां होगा वहां ज्ञान वैराग आ ही जाएगा। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजोजित जनतासु वैराग्यम ज्ञानम चलता है। ज्ञान वैराग भक्ति के साथ अहेतुकी हो ही जाता है। कोई भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा तो वैराग आएगा। उस रस को पीने वाला फिर और कोई रस पी ही नहीं सकता, हर रस से विरक्ति हो जाएगी। और उस रस के ज्ञान होने के बाद और कहीं मन भागेगा। और जब व्याकरण पढ़ेंगे तो सारे तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, पूरे अवतार का, पूरे स्वरूप का, माया का, जीव का, सब उसमें संज्ञा में सब उसका उल्लेख हुआ, संधि में, धातु में सबका प्रयोग हुआ। जीव को समझ कहते कृष्ण कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादन संबंध अधिकरण सब कुछ जो व्याकरण के सब सूत्र है। कृष्ण संज्ञा सर्वनाम संधि सब कुछ है। जैसे एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते तो संधि हो जाते हैं, रमा जो प्रीस रमेश, या इंद्र जो इस इंद्रेश, जैसे संधि का प्रयोग होता है। तो दो शब्दों का जोड़ है। जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे मैं दो शब्दों को जोड़ करके संधि कर रहा हूं आपके नामों का, उमा जुक्तिश, उमेश, ऐसे बहुत सारे नाम है। दूसरे अर्थ में से करो राधा जुक्तिश, राधेश, या राधा आगता, राधा गाता, राधा गाता, एक साथ राधा आगत, राधा गाता, संधि हो जाता है। तो जैसे दो शब्द मिल करके एक रूप हो जाते, संधि हो जाते, जुड़ जाते, ऐसे मेरा मन आप अपने चरणों में जोड़ लीजिए। मैं आपके नामों को जोड़ रहा हूं, नाम के साथ जुड़ेंगे तो नाम के प्रभाव से मन अपने आप भगवान के चरणों में जुड़ जाएगा। नामाश्रय में जो हरि भजन करेंगे वो काटते किम कर्म पतितंग मांग विस्मय भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम चिंतन, अपने चरणों में जोड़ धूलि बना। और इस व्याकरण रचना के बाद जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने जो रचना की
इसको मत समझो कि एक कोई ज्ञान है, बल्कि गोपाल चंपू श्रीमद् भागवत है। जितना महिमा गोपाल चंपू की है, जितना उसमें तत्व सिद्धांत, उतना हरिनामामृत व्याकरण में। इसका एक भी अच्छा, एक भी शब्द बेकार नहीं है, विफल नहीं है, फालतू नहीं है। उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की, न छात्र विफला मात्रा की, अभी तो महाफल युक्त लीला कावत जय कृष्णावत्र कृतस्मात्। ये व्याकरण मैंने कृष्ण सेवा के लिए, भजन के लिए किया है, इसलिए इसमें कोई भी अक्षर बेकार नहीं, विफल नहीं, बल्कि उनके काव्य की तरह, भागवत की तरह जय युक्त हो। ऐसे बहुत प्रतिज्ञा की उन्होंने। और एक जगह पर अद्भुत अद्भुत उन्होंने लिखा, पाणिनि पाणियन हानियन। पाणिनि व्याकरण है, अगर उसका पठन के बाद, अनुसरण के बाद अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता तो पाणिनि हानिकारक है। इसे बोलते नहीं, ये चीज मत खाओ, इसको मत पियो, हानिकारक है। तो वो पाणिनि व्याकरण भी यदि भक्ति को नहीं ले जाता जीव को, तो उससे बड़ा और क्या हानि हो सकता है। व्याकरण पढ़ करके आदमी पत्थर जैसा हो जाता है, भाव का उदय नहीं होता है, तार्किक हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो कहते जो वाणी, जो शब्द भगवान को प्राप्त ना करा दे, उससे बड़ा हानि क्या हो सकता है। इसके पाणियन हानियन, रसवत रसवत, काका लाप का लाप। पाणिनि का कोई रस नहीं है, अरस है। क्योंकि आज हर बोल रहे, हम स्वर व्यंजन कर रहे, विष्णु जन कर रहे, हरि गदा, हरि खड़ग, चतुष्ण, चतुर्गुहा इत्यादि नाम दे रहे। तो ये रस से नहीं, वो रस है। कुछ टुटुक ये सब रस होता है। कबर का चबर का जिसको बोलते हैं उसको कुछ टुटुक बोलते हैं। रसवत अरस। एक व्याकरण है कला, कहते जो कला कृष्ण भजन की बात नहीं करता है, उसको कलाप कहेंगे ना, काका लाभ कहेंगे। ये क्वेश्चन कहते कलाप नहीं, वो काका लाभ है। काका लाभ होता है कौआ का लाभ, काक आलाप। अगर कौआ 2 मिनट यहाँ बैठ जाए तो कैसा लगता है, डंडा लेके पीछे भागते, खोपड़ी तोड़ दूंगा, क्या काय 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 कर रहा है। तो कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ करके भगवत चर्चा न करे और काय काय करे, तो आप क्या करेंगे, डंडा लेकर उसको मारें। कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन, बस कौन 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 कौन। ये सारे व्याकरण इसी तरह के हैं, काका लाभ का लाभ। सार परित्याग सारस्वत। सारस्वत जो है सार त्यागी है, उसमें कोई सार नहीं। विस्तर नामक व्याकरण केवल विस्तार है, आदमी को केवल उलझाने वाली बात। गोविंदक बिंदमानम भक्ति भक्ति वाणी न चेत बुरा। जो वाणी कृष्ण को प्राप्त करने की बात नहीं करती, कोई भी शास्त्र पुराणों कहा गया उसको मत सुनो, मत देखो, मत पढ़ो। ब्रह्मा ही क्यों न बोल रहा हो। जस्मिन शास्त्र पुराणे व हरि भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम तत्शास्त्रम यदि ब्रह्म स्वयं पते। क्या बोले, तो जिस शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में भगवान की भक्ति नहीं है, उसको मत सुनो, मत पढ़ो। और यदि वो भक्ति की बात करते हैं तो कहते पाणिनियम पाणिनियम, फिर पाणिनि को पियो, पाणिनियम। और कला फिर कुछ कला, श्रेष्ठ आलाप हो जाता है, सारस्वत शास्त्री हो जाता है। और विस्तार होने पर भी अगर कोई विस्तार से भगवान की कथा कह रहा है तो कोई बात नहीं, आदमी सुनता है। ऐसे जिनको समझ, अद्भुत प्रतिभा,
लोग सुनते हैं उनके बारे में तो कहते हैं इनको जीव क्यों कहते हैं? जीव 4 लाख श्लोक लिख सकता है, जीव ऐसे भागवत का सिद्धांत कर सकता है? ये तो भगवान के ही समान है। इन्होंने भागवत को इतना प्रकार से आस्वादन किए, श्रीमद् भागवत को। जीव गोस्वामी जितना भागवत को आस्वादन हमको नहीं लगता किसी और ने किया हो। पहले तो भागवत के ऊपर इन्होंने टीका लिखा, क्रम संदर्भ, शुरू से शेष तक भागवत के क्रम दिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहीं कहीं पर कथा में आगे पीछे कर दिए क्रम को। जैसे गोवर्धन लीला को कई जगह पर उन्होंने दिया, शरद ऋतु का वर्णन के बाद कोई और वर्णन आ गया, जीव गोस्वामी कहते नहीं इसके बाद एक लीला है, कालिया दमन लीला है, जगपत्नियों पर अनुग्रह की लीला है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी भावावेश में लीला को व्यतिक्रम कर गए, क्रम में नहीं रखे। इसके बाद कौन लीला थी उसको छोड़ के और लीला बोल गए, और फिर बाद में उसको बोल रहे, उसका एक क्रम दिया सब लीलाओं का। फिर उन्होंने 10वें स्तर पर टीका लिखी, जबकि सनातन गोस्वामी जी का बृहद वैष्णव तोषणी टीका है, लेकिन उसका सार और संस्कार करके सुंदर एक टीका लिखी, और टीका सनातन गोस्वामी जी के टीका से बड़ी हो गई। लेकिन दैन्यता में अपने टीका का नाम रखे लघु वैष्णव तोषणी। फिर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर भागवत पर 60 संदर्भ, 6 संदर्भों में भागवत की विश्लेषण की, भागवत का विश्लेषण की। संदर्भ का मान्य होता है जिसमें गूढ़ अर्थ का प्रकाश हो, जो किस शब्द में क्या अर्थ छुपा हुआ है गूढ़ रूप में, उसको संदर्भ कहते हैं। गूढ़ अर्थ प्रकाश में श्रेष्ठता, वो अर्थ थोड़ा विशेष हो, श्रेष्ठ हो, मतलब सुन करके चमत्कार हो, ये न लगे क्या बोल रहे हैं, समय बर्बाद करने लगे कि हाँ ये बोलना हृदय को छू रहा है। और एक ही शब्द का नाना अर्थ हो सकता है, उसका भी जिसका भी व्यक्ति हो, उसको संदर्भ करते हैं। और संदर्भ में इन्होंने संबंध तत्व को इतना स्थापित किया कि संदर्भ संबंध को बोलने में इनको 4 संदर्भ निकल गए। तत्व संदर्भ, भागवत, परमात्मा और कृष्ण, ये चारों संदर्भों में केवल संबंध को बताया। जीव का भगवान के साथ कोई न कोई संबंध है, जीव भगवान नहीं है। जीव और भगवान के बीच में भेद है। शंकराचार्य जी बोले जीवो ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। जीव को समझ का चारों संदर्भ में बहुत धैर्य होता है। बोले कैसे कहेंगे, कौन सा प्रमाण आधार पर कहेंगे? एक और तो कहते रसो वैसा, और रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ठीक है हम भी मानते हैं। और फिर कहते रसम हेमाया लग्न आनंदी भक्ति, भेद हो गया। वो भगवान परम तत्व रस स्वरूप है, और उस रस को प्राप्त करके जीव आनंदित होता है। एक परम रस है और एक रस को प्राप्त करता है, तो भेद हुआ। एक रस और एक रस पीने वाला है, आशय विषय है, दो है। कहां कह दिया कि जीव ब्रह्म एक है? तो ऐसे से सब लोग उठा के मार रहे हैं कि कोई बोलती को जवाब नहीं। संदर्भ, यदि जीव ब्रह्म एक है तो फिर कौन किस रस को पाकर आनंदित होता है? तो जीव भी ब्रह्म, वो भी आनंद है। तो एक आनंद दूसरे आनंद को क्या पिएगा? एक रस दूसरे रस को क्या पिएगा? क्या रस को पीते हुए देखा गया क्या? 2 सेब का जूस है 2 गिलास में, क्या दोनों जूस एक दूसरे को पी लेंगे? और दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? कौन किसको अनुभव करे? यहाँ भेद है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। बहुत विचार दिए संबंध में।
और आगे जाके भक्ति संदर्भ में विश्लेषण की, कैसे उनका अनुशीलन होता है, कैसे भक्ति होता है। और भक्ति का तात्पर्य क्या है? प्रीति। जितनी भी चेष्टा है, जो भी हमारा साधन भजन है, भक्ति है। अगर उसमें प्रीति नहीं तो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, भगवान को नहीं पा सकता। ठाकुर जी का बर्तन धो रहे हैं, ठंड लग रही है, गुस्सा आ रहा है कि सारा जीवन के बर्तन ही धोता रहूं, और कभी कभी बर्तन को गुस्सा में पटक भी रहे, टेढ़ा करते हैं, मार मार के पटक पटक। तेज हमारा भक्ति है, वो प्रीति में भक्ति नहीं, उस भक्ति में हमारा स्नेह नहीं, ममता नहीं है। क्या करें? वृंदावन में रहना है, कृष्ण बलराम में रहना है, तो कुछ करना पड़ेगा, और कहीं जाके रहता है। ऐसा सोच करके जो भक्ति हो रहा है, उठा पटक जबरदस्ती वाला, वो प्रेम को नहीं दे। इसलिए कहते जो भी भक्ति करो उसमें प्रीति होना चाहिए, प्रेम से, अपना मान कर कि हमारे ठाकुर जी, इनको हमें सुखी करना है, इनका हर चीज को मैं सुंदर से संस्कार करूंगा, सुंदर से धोऊंगा, पूछूंगा, रखूंगा, देखूंगा। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम को नहीं जोड़ रहे, खाली अपना स्वार्थ, फायदा। वास्तव में खाली हमारी भक्ति जो है मायामय है। यहाँ जो पढ़े, कुछ कारण में पढ़े, अपना कुछ मिल रहा है तो वही मिलेगा, असली चीज नहीं मिलेगा। इसलिए जीव गोस्वामी जी प्रीति संदर्भ में बहुत जोड़ लगा। केवल भक्ति भक्ति कुछ नहीं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रीति है तो भक्ति 1000 गुना हो जाता है, अनंत हो जाता है। और प्रीति नहीं है तो कितना भी ठोक पीट कर लो, कुछ नहीं होता। सुदामा जी ने क्या दिया? 4 मुट्ठी चावल तो दिया, कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन कितना प्रेम से वो लाए थे मांग करके। और उसके प्रीति को देख करके, भाव को देख करके कृष्ण कितना प्रेम से पाए। विदुरानी के छिलका कैसे पाए, सबरी के बेल कैसे पाए, तो प्रीति संदर्भ में सब दिखाए। गोपियों का प्रेम की प्रकाष्ठा, जिसको एक एक भाव पर कृष्ण 1000 बार मर जाते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। इतना उन प्रेम है, इतना स्नेह है। थोड़ा छाछ क्या पिला रहे कृष्ण को, ऐसे प्रेम से निहार रहे हैं, ऐसे लग रहे अपना प्राण, अपनी आत्मा ही कृष्ण को दे रहे हैं। और कृष्ण उस छाछ पर इतना लट्टू हो जाते हैं। गोपियां कहते नहीं पिलाओ, बोला क्या बात है, क्यों नहीं पिलाएंगे? बोले थोड़ा नाचना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, थोड़ा क्या, पूरा दिन नाचूंगा, पिलाओ, मैं नाचता ही रहूंगा। ताही रही रहे छोरिया छचिया बड़े छाछे पे नाच नाच। किस कारण? प्रीति के कारण, स्नेह। और प्रीति के तारतम्य को जिनको समझिए, श्रद्धा से लेकर के महाभाव तक, और जितने भी आश्रय, विश्रय, उद्दीपन, आलम्बन, जितने भी भक्ति रस के जो सामग्री है, उस पर जो विचार किए, उज्ज्वल नीलमणि आदि पर जो टीका लिखे थे, उसको पूरा स्वादन किया उन्होंने। भक्ति रसम सिंधु जो टीका लिखे, वो सब उन्होंने स्वादन किया इन संदर्भों में, और हमारे लिए प्रसाद रूप में जो रखा। कोई भी हमारे संदर्भों को देखता है तो सिर झुका देता है। भागवत के टीकाकार बहुत हुए होंगे, लेकिन जीव को समझने का स्थान कोई नहीं दे सकता। बाद में, पूर्व में जो भी हुए, इनके वस्तु को लेकर के विचार। चक्रवर्ती पाद जी इनके भावों के आधार पर अपना विचार अद्भुत। जब बल्लवाचार्य पाद आके जीवों को समझ के रसायन सिंधु को देख करके एक पंक्ति में कहते हैं कि ठीक है, वर्णन बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा संशोधन की भी जरूरत है। तो जीव को समझ जमुना तट पर जाकर पूछे, आचार्य पर क्या संशोधन करना चाहते थे आप, क्या कमी लगी? तो उन्होंने बोला कि आपके गुरु जी ने जो लिखा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा की साची, भुक्ति और मोक्ष की जो स्पृहा है वो पिशाची है। जब तक हृदय में रहेगा भक्ति सुख नहीं हो सकता। तो बोले इसमें दोष क्या है?
बोले दोष ये है कि भोग और मोक्ष पाने के लिए लोग कितना तपस्या कितना जग पुण्य करते, 100 अश्वमेध जग करने के बाद भोग मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और कितना साधन के बाद में मुक्ति मिलती है, और आप उसको पिशाची बोल रहे हैं। जीव को समझे, बोले उन्होंने भोग मोक्ष को पिशाची नहीं कहा, भक्तों को कहा कि तुम्हारे लिए इसकी इच्छा पिशाची है। एक शुद्ध भक्त के हृदय में भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए यदि वो शुद्ध भक्ति चाहता है। और किसी को अगर भोग मोक्ष चाहिए तो जाओ मरो, मना थोड़ी कर दिया उनके लिए। जिसको स्वर्ग जाने वहां जाओ, अमृत पियो, नाचो, मुक्ति में जाओ, मुक्त हो जाओ। लेकिन एक भक्त को, शुद्ध भक्त के लिए भोग मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और शुद्ध भक्त इसको कभी चाहता भी नहीं। न नाग पृष्ठम न चपारे मिष्टम, बार बार चिल्ला के कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे केवल आपको चाहता हूं। ऐसे हजारों प्रमाण दिए, वो जब से चमत्कृत हो गए, और उनको सब पूछे कौन है, बोला मेरा भाई का लड़का। बोला बड़ा विद्वान, बाप रे बाप, ऐसे बोलता, इतने अनर्गल उदाहरण दिया, मेरा सिर हिल गया। रूप गोस्वामी सुन के थोड़ा क्रोधित हुए। ये महाप्रभु जी के संग के हैं, बल्लभाचार्य जी को महाप्रभु जी सम्मान करते रायगढ़ में गए थे, उन्होंने उनको आरती उतारे, अपने घर ले गए थे। तो पर एक मित्र मैत्री का भाव है, रूप सनातन के प्रति इनका बड़ा स्नेह है। ये कुछ आय संशोधन करने के लिए तो क्या हो गया, हमें तो दैन होना चाहिए, तिरना तक सुनी चाहिए, न तरुण की सुनी। और तुम बीच में पंडिताई करने चला, तुम अकाल में बैरागी हुआ, तुम्हें हाथ रहने जोग ने घर चले जाओ। गुरु जी ने बोला घर जाओ, रो के वहां से निकल गए। एक बार तो मन में आए चला जाओ, लेकिन कहाँ जाओ। फिर नंदगांव के पास एक जमुना जी के गुहा में, मांद में, जिसमें मगरमच्छ रहते हैं, ऐसे उसमें जो मिट्टी में होता है जमुना किनारे में, उस गुफा में जाके लौट गए, रोने लगे, वही मट्टी खाने लगे, भूख लगे। ब्रजवासी लोग आए, उनको देख के सनातन पास से बोले, सनातन पास उनको उठाए और रूप गोस्वामी के पास राधा दामोदर में ले आए। और उसमें रूप गोस्वामी जी कुछ कथा बोल रहे थे, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, ये है कि धर्म नहीं सुन सना। सनातन को बड़ा धर्म की व्याख्या कर दो, लेकिन कहाँ जीव पर दया है, जीव रो रहा है, अस्वस्थ है, आप तो जीवे दया। फिर रूप गोस्वामी जी को संग उठाए, गले लगाए, स्नान आदि कराए, भोजन कराए, उनको स्वास्थ्य की दवाई वस्ती से, और बाद में फिर उनकी रचनाओं के, टीकाओं के, भक्ति रसम सिंधु के ऊपर उन्होंने रचना टीकाएं लिखी, उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर टीका लिखी। भक्ति रसम सिंधु का टीका का नाम है दुर्गम संगमनी, और उज्ज्वल नीलमणि का टीका का नाम है रोचन रोचनी। ऐसे कितने ग्रंथ उन्होंने प्रकाश किए, कितने प्रकार से भागवत रस